Hello everyone, welcome back to all of you. Today we are doing very interesting, very special and main topic of your syllabus. So we are doing tense today. ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਂਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਨੇ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ 4 ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 3 ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਪਾਸਟ, ਫਿਊਚਰ। ਐਂਡ ਅੱਗੋਂ ਹਰੇਕ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸਟ, ਹਰੇਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਚਲੋ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅਸੀਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ, ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਰਬ ਦੀ 4th ਫਾਰਮ ਐਂਡ ਵਰਬ ਦੀ 5th ਫਾਰਮ। ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋ, ਵੈਂਟ। ਥਰਡ ਵੀ ਪਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਦਾ ਪਾਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸਨੇ। 4th ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ING ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ING ਫਾਰਮ ਹਰੇਕ ਵਰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਗੋਇੰਗ। ਇਹ 4ਥੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਬ ਦੀ 4th ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੋਇੰਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4th ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਬ ਦੀ 5th ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੋ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਗੋ, दूसरी होगी वेंट, तीसरी होगी गॉन, चौथी होगी गोइंग। लास्ट असी गल कीती है सिंगुलर, मतलब कि जिन्होंने असी गोज बनावांगे, गोज जिद्दां कि सिंगुलर है, ठीक है जी। तो हुण गल कीती जाए कि देखो वेंट, गॉन, तो यह तो तुहानूं पता चल गया कि पास्ट च लगणगियां जदों पास्ट की गल आउंदी है। गोइंग जदों कोई काम हो रहा हुंदा, मतलब कि कंटीन्यूसली हो रहा, उस कोई रुकावट नहीं है, उदों असीं लगावांगे। ये आपां अगे अगे करते जावांगे, सिर्फ ध्यान देना है। बट हुण गल आ जांदी है वर्ब दी फॉर्म 1 दी एंड वर्ब दी फॉर्म 5th दी। जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म 1 है वह प्लूरल फॉर्म हुंदी है। जिद्दां कुछ भी कहो गो, ये मतलब कि अपने ये कहो कि प्लूरल फॉर्म है। बहुवचन फॉर्म जिहड़ी हैगी वो हैगी है गो। अगर असी इस फॉर्म नूं सिंगुलर बनावांगे उसनूं असी कहांगे गोज। इस दी लोड़ क्यों पवेगी?
क्योंकि जदों भी टेंस आपां शुरू करते हैं उसदे विच सबजैक्ट एंड वर्ब का अग्रीमेंट हुंदा रहिंदा, उन्हां दा आपस विच जुड़िया होना, इक्को जिहा होना, उन्हां दा इक्को जिहा होना जरूरी है। अगर सबजैक्ट प्लूरल है तो वर्ब का भी प्लूरल होना जरूरी है। अगर सबजैक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब का भी सिंगुलर होना की है जरूरी है। तो शुरू करते हैं जी सिंपल प्रैजेंट तो। सिंपल प्रैजेंट की गल करिए, ये यूज़ किया जाता है यूनीवर्सल ट्रुथ लई। यूनीवर्सल ट्रुथ की देखो सिंपल प्रैजेंट ते ही सानू टाइम लगना है। सिंपल प्रैजेंट ते जिन्ना सानू टाइम लगना, जिन्ना डीपली तुसी इसनू समझ पाओगे, बाकी तो कुछ भी नहीं। बाकी पिछे जेडे होणगे ना टेंस सारे वो कुछ भी नहीं है। आप शुरू जो सिंपल प्रैजेंट तो कर लिया, इत्थों ही बेस तुहाडा बनना, ये ते पूरा ध्यान तुसीं ने देना। सिंपल प्रैजेंट दे विच आपां कदों यूज़ किया जाता, कहते यूनीवर्सल ट्रुथ। यूनीवर्सल ट्रुथ की गल की जाए तो यूनीवर्सल ट्रुथ की होंदे ने कि जिद्दां धरती आपां कहिए तो चलो साइंटिफिक होगी कि जिहड़ा सूरज है वो पूरब विचों निकलदा। आपां सूरज की एग्जाम्पल लै लईए, सूरज पूरब विचों निकलदा, इसनू की है कि ने अपने लोगों ने मन्निया होया ना, इसनू मन्निया होया है लोगों द्वारा। अगर आप साइंटिफिकली गल करिए तो पूरब किसी ने देखा नहीं, आप पूरब तो नहीं देखा, आपको ये पता कि जिधरों सूरज चढ़ जाता उधर पूरब होंदा, क्योंकि आप गल मान चुके हैं, ठीक है जी। बट यूनीवर्सल ट्रुथ वो होंदा जो लोगों द्वारा मन्निया जाता। उस तो अगे आ जाते हैं इटरनल्स। इटरनल्स स्टूडेंट्स वो होंदे ने जो साडे साइंटिफिक लॉजिकली जिसनू करते हैं कि यस यही चीज़ सच है, जिसनू साइंटिफिक प्रूफ करते हैं, साइंस प्रूफ करती है, उसनू असीं इटरनल्स कहने हैं। जिद्दां कि धरती चपटी है, धरती गोल है, धरती सूरज दुआले घूमती है, ये साडी साइंस ने सानू प्रूफ करके दिता है, वो साडे इटरनल्स ने। हैबिचुअल एक्शनस किसी भी चीज़ आपां जिद्दां आपां हर रोज़ मॉर्निंग वॉक ते जाने, साडे हैबिचुअल एक्शनस ने, असीं हर रोज़ खाना खाने, इन्हां लई भी सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। प्रोवर्ब जदों कहावतां की गल आउंदी है, जदों कहावतां कुछ बोलियां जांदियां ने, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐदां दी कोई भी कहावतां बोलियां जांदियां ने तां असीं यूज़ कर, उदों भी सिंपल प्रैजेंट ही, उत्थे भी सिंपल प्रैजेंट ही यूज़ हो रहा हुंदा है। अगर असीं गल करिए मैक्सिम्स ही, मैक्सिम हुंदियां ने किसी द्वारा मतलब किसी महापुरुषां दियां बोलियां गईयां पंक्तियां, ठीक है जी, महापुरुषां द्वारा कईयां गईयां गल्लां उन्हां नूं आपां मैक्सिम्स कह दिंदे आ। कोई सिद्धांतां दी गल करदे आ, प्रिंसीपल्स दी गल करदे आ, तां भी असीं यूज़ करदे आ जी, किहनूं यूज़ कर लैंदे आ असीं साडे प्रैजेंट सिंपल नूं। एंड अगे साडी जिथे कंपलसन, जिथे साडी कोई मजबूरी होवे उत्थे भी असीं प्रैजेंट सिंपल दा यूज़ करदे हां। देखो सिंपल प्रैजेंट दे विच गल की आ जांदी है कि जां तां यूनीवर्सल ट्रुथ है, मतलब कि ये लगदा कित्थे है, कित्थे कित्थे यूज़ हो रहा, अज दे समय की गल करदे ते कित्थे कित्थे यूज़ हो रहा सिंपल प्रैजेंट। देखो यूनीवर्सल ट्रुथ दे विच लगदा आ, तुसीं पता की पढ़िया होना कि पिछे दा है दी है हुंदा, ऐदां नहीं है, ऐदां नहीं है। हुण वो रूल्स नहीं काम करने, दा है दी है, हुण वो समा लंघ चुकिया, तुहानूं किसी ने दा है दी है नहीं लिख के देना, तुसीं पूरा डीपली जाना है कि देखो यूनीवर्सल ट्रुथ के नाल लगदा है, इटरनल्स के नाल लगदा, जदों साडी कोई हैबिचुअल एक्शनस हो रहे हैं उदों असीं सिंपल प्रैजेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोवर्ब यूज़ हो रहे हैं उदों असीं कर रहे हैं, मैक्सिम्स दे लई कर रहे हैं। हुण अगर असीं इसनूं सीखना चाहुंदे आ, अगर असीं इसनूं जानना चाहुंदे आ साडे एग्जाम्स दे विच किद्दां आएगा, उसनूं पहचानना चाहुंदे आ, तो उस तो पहला सब तो पहला एक बार असीं परसनस की गल कर लईए कि जिहड़े साडे परसनस की हुंदे ने, परसन बारे थोड़ा जिहा जाणांगे, फिर अगे चलांगे आपां सिंपल प्रैजेंट ते। हाले आपां सिंपल प्रैजेंट शुरू नहीं किया, ठीक है, हाले तो सिर्फ आपां जान पछाण कर रहे हैं टेंस नाल। एनी ते जरूरी भी है स्टूडेंट्स, अगर ये नहीं करांगे तो फिर कुछ उपर दी लंघ जाना तुहाडे, ठीक है। अगर असीं गल करिए परसन की, परसन तुहानूं पता है कि 3 तरह के हुंदे ने। परसन किहड़े हुंदे ने? 3 तरह के। सपोज करो मैं, ठीक है जी, मैं तुहाडे नाल बोल रही हाँ, मैं देखो स्पीकर है क्योंकि मैं बोल रही हाँ, ठीक है जी, मैं स्पीकर हाँ। एक हुंदा मेरे सामने जो बैठा, मान लो तुसी हो, तुसी सुन रहे हो मैनू, सामने मैं तुहाडे नाल गल्लां कर रही हाँ, चलो ये गल है कि रिकॉर्डिंग चीज़ सही, मैं गल्लां तो तुहाडे नाल ही कर रही हाँ ना। लिसनिंग, तुसी लिसनर हो क्योंकि तुसी सुन रहे हो। एक हुंदा परसन हो जिस दे बारे आपां गल कर रहे हैं। हुण आपां अज दी गल करिए तो आपां किहदे बारे गल कर रहे हैं? टेंस बारे गल कर रहे हैं। चलो कुछ भी हो सकता है, किसी भी बारे गल की, तो टेंस भी अज आपां दा थर्ड परसन है, क्योंकि आपां जिस दे बारे गल कर रहे हैं ना वो साडा थर्ड परसन है, जो बोल रहा है वो पहला परसन हो गया, जो सुन रहा है वो दूजा परसन हो गया, एंड जिस दे बारे आपां गल कर रहे हैं वो तीसरा परसन हो गया। समझ लगी स्टूडेंट्स? 3 परसन हुंदे ने जदों भी कोई गल चलदी है, जदों भी कुछ बोल, कोई इंसान बोल रहा, कुछ भी, कोई भी अपनी कह लो भी घटना वापरी है, तो 3 उहदे विच परसन हो ही ने, होणगे। तो हुण जदों गल आ जांदी है कि 3 परसन हुंदे आ, तां जिहड़े अपने परसन ने ये भी की हुंदे ने स्टूडेंट, सिंगुलर प्लूरल भी हुंदे ने। देखो
पहला परसन सिंगुलर होगा, दूसरा परसन प्लूरल होगा। सिंगुलर प्लूरल तो तुहानूं दस्सण दी लोड़ नहीं, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। पहले परसन च सिंगुलर या तो मैं, जे मेरे नाल बैठा कोई होर बोल रहा तो मैं तो बन जाने आपां वी यानी कि असीं। अगर आप सैकेंड परसन सुनन वालियां दी सिंगुलर की गल करिए यू, मतलब देखो तुसी यू तुसी कोई भी हो, ठीक है, तुसी ज़्यादा बैठे हो, इकट्ठे बैठे रहोगे तो तुसी यू ही रहोगे। एंड योर नूं भी आप यूज़ कर लैने हुन्ने आ सैकेंड परसन दे लई। नैक्सट साडे आ जांदे ने आपां किसी लड़के बारे गल करदे होईए तां ही कह लांगे, किसी लड़की बारे गल करदे होईए तां शी कह लांगे, किसी आपां चीज़ बारे गल करदे होईए तां आपां इट कह देवांगे, किसी दे नाम लैके गल करते होईए तो आप उसनूं नेम्ड कह देंगे। जिद्दां टेंस सी, टेंस किसी भी चीज़ का कह लो, चलो किसी मैटर का ही कह लो, भी किसी पढ़ाई का ही कह लो, नाम है, नाम तो है तो नाम लैके गल कर रहे, टेंस टेंस करके गल कर रहे, तो ये की हो गया साडा थर्ड परसन। ये सिंगुलर ने। जदों असी ग्रुप लई गल करांगे, सिंगुलर ग्रुप मतलब कि ज़्यादा लई गल करांगे, हुण टेंस की गल की जाए तो ग्रुप ही है, तो प्लूरल भी होगी, टेंस प्लूरल हो गया। बट हुण आपां गल सिंपल प्रेजेंट की कर रहे हैं तो उत्थे सिंगुलर भी बन रहा। चलो हुण तुसीं वो चीज़ नोट जो मैं सिर्फ तुहानूं समझाउण लई कीता है कि जदों आपां किसी दे भी बारे गल कर रहे हैं, अगर वो कल्ला परसन है तो वो सिंगुलर, अगर आपां उससे ज़्यादा बारे गल कर रहे हैं तो वो प्लूरल हो जाएंगे। गल समझ आई? तो देखो सिंगुलर एंड प्लूरल तुहानूं समझ आ गया। तो हुण देखो स्टूडेंट्स की हुंदा, हुण तुसीं एक चीज़ इत्थे समझ लो, सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि सारे जदों आपां स्ट्रक्चर करांगे तो सारे दे विच तुहानूं इसने यूज़ होना ही होना है। हुण मैं अगर देखा आई नूं अगर आपां यूज़ करदे हां, अगर आपां देखिए आई सिंगुलर है, ठीक है जी, कहण नूं आई सिंगुलर है, मैं इकल्ली हाँ, बट जदों गल स्टूडेंट्स यूज़ करन दी आंदी है तो इस दे नाल असीं देखो सिंगुलर दे नाल की हुंदा ना, जदों आपां सब्जैक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा गल कर लीए कि मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया कि सिंगुलर अगर सब्जैक्ट सिंगुलर है तो उस दे नाल जिहड़ी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर चाहीदी है, ठीक है जी। अगर सब्जैक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहीदी है। सिंगुलर किवें चाहीदी है? देखो जी, जिवें कि हुंदा आई परसन साडे ध्यान विच आ गए सारिਆਂ ਦੇ, पहला मैनूं ये दसो परसन ध्यान विच आ गए ना, बोलण वाला स्पीकर, सुनन वाला लिसनर, जिस दे बारे गल की जा रही है थर्ड परसन, उसनूं असीं थर्ड परसन कह रहे हैं, बोलण वाला पहला परसन, सुनन वाला दूजा परसन। चलो ये गल तुहानूं इन्नी समझ आ गई। इन्हां ते आपां वापस आवांगे, पहला आपां स्ट्रक्चर देखदे हां। हुण सिंपल प्रेजेंट टेंस ते आ गए जी। हुण आपां सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुण आपां स्ट्रक्चर देखांगे। आपां देख लिया कि जां तां डेली जिहड़ा साडा रूटीन है उहदे विच सिंपल प्रेजेंट ने यूज़ होना, जां फिर इहदा यूज़ यूनीवर्सल ट्रुथ दे लई होना, जां इहदा यूज़ इटरनल्स दे नहीं होना, जां फिर असीं इहनूं प्रोवर्ब दे विच यूज़ करदे हां। मतलब कि सानूं पता लग गया कि कित्थे कित्थे सिंपल प्रेजेंट सानूं मिलदा है, इहदा रोल की है। हुण असीं गल करदे हां स्ट्रक्चर दी। तां स्ट्रक्चर की हुंदा है? देखो वर्ब तुहानूं मैं पहलां ही दस चुकी हां, वर्ब तुहानूं मैं पहले दस चुकी हाँ, V1 V2 V5, फिर भी इत्थे आपां क्लीयर करांगे। हुण देखो सबजैक्ट दिता है, वर्ब की फस्ट फॉर्म होएगी, ये मतलब कि जो ये लिखा जाएगा ना, सिंपल प्रेजेंट नूं लिखांगे तो सब तो पहला सबजैक्ट आएगा, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा, फिर कोई तीसरा मतलब कि ऑब्जैक्ट कह लो या फिर अदर वर्ड होएगा। एग्जाम्पल थ्रू देखिए, देखो सबजैक्ट किया आए, वर्ब की फस्ट फॉर्म किया प्ले, ठीक है जी, वर्ब की फस्ट फॉर्म ही है ना प्ले, अदर वर्ड किया फुटबॉल किया एक अदर वर्ड। वेरी गुड, सानू स्ट्रक्चर समझ आ गया कि इहदे विच की हो रहा है, मैं फुटबॉल खेडदा हाँ, मैं फुटबॉल खेडदा हाँ। देखो आए सबजैक्ट हो गया, प्ले वर्ब होगी, फुटबॉल अदर वर्ड हो गया। स्ट्रक्चर सानू समझ आ गया कि इहदे विच सबजैक्ट होगा, वर्ब की पहली फॉर्म होगी एंड इस दे विच की होगा अदर वर्ड होगा। हुण अगे एक एग्जाम्पल होर दित्ती है, यू ड्रिंक मिल्क, तुसी दुध पींदे हो, ये अपना रूटीन भी हो सकता है। चलो आपां यू की गल करिए तो यह हो गया साडा सबजैक्ट हो गया, ड्रिंक की गल करिए वर्ब की पहली फॉर्म है, अगर असी मिल्क की गल करिए तो यह की हो गया अदर वर्ड हो गया। बट नाल सानूं एक होर स्ट्रक्चर दिता है जिस दे विच गल कीती है कि सबजैक्ट होगा, वर्ब की पंजवीं फॉर्म होएगी, पंजवीं फॉर्म अदर वर्ड होएगा। पंजवीं फॉर्म की गल आपां करके हटे, पंजवीं फॉर्म जिस दे नाल एस या ES लग्या होएगा, जिद्दां प्ले सी, जिद्दां प्ले सी, प्ले दे नाल अगर असी एस लगा दिए तो यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई, अगर असी गो दे नाल ES लगा दिए तो यह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। ठीक है जी, हुण असी इसनूं फिफ्थ फॉर्म लगानी है,
मतलब कि वर्ब की पंजवीं फॉर्म लगानी है। देखो जी ही देखो ही थर्ड पर्सन है, इकल्ला पर्सन है। थर्ड सिंगुलर पर्सन की जो असी गल करांगे ना, थर्ड सिंगुलर पर्सन की कल्ले जने की जो असी गल करांगे उत्थे असी वर्ब की पंजवीं फॉर्म लगावांगे। हुण ये ध्यान रखना तुसीं, ठीक है जी। वर्ब की पंजवीं फॉर्म कदों असी लगावांगे, जदों असी थर्ड सिंगुलर पर्सन की गल करांगे, ठीक है जी। सिंगुलर पर्सन मतलब कि किसी कल्ले इंसान बारे, तीजे बंदे बारे गल करांगे। भावें वो ही लिखिया, भावें वो शी लिखिया, भावें वो लिखिया माई मदर, भावें उत्थे लिखिया माई फादर, भावें उत्थे लिखिया योर ब्रदर, ऐदा लिखिया, पर वो गल देखो की है, तीसरा पर्सन है। योर ब्रदर तुहाडा भरा, किसी की गल हो रही है। मेरी माता किसी तीजे बंदे की गल हो रही है। मेरे पापा किसी तीजे बंदे की गल हो रही है, ठीक है जी। मेरे को एक पैन पिया, पैन कोई तीसरी चीज़ है, तो इट मीनस तीसरे जने की गल हो रही है, जिथे उत्थे असी लगाना है। हुण कंडीशन की है कि वह बंदा होना की चाहिए, वो चीज़ होनी की चाहिए सिंगुलर। उत्थे असी वर्ब की पंजवीं फॉर्म लगा देनी है एस या ई एस वाली, नाल अदर वर्ड आएगा ही आएगा। देखो यही स्ट्रक्चर है इसका की है कि ही देखो लग गया सब्जैक्ट, प्लेज हो गया वर्ब की पंजवीं फॉर्म। क्यों लग गया प्लेज? क्योंकि ही की सी, तीजा बंदा सी, कल्ला बंदा सी। एंड फुटबॉल की है अदर वर्ड, ठीक है जी। समझ लगी जी गल इत्थे तक? सब्जैक्ट हो गया वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पंजवीं फॉर्म। अगर असीं इसनूं स्ट्रक्चर नूं जोड़ के देखिए तो हुण देखो की है कि सब्जैक्ट लगदा है इस दे स्ट्रक्चर दे विच, ठीक है जी। उस दे नाल वर्ब की पहली या पंजवीं फॉर्म दोवां चों एक आएगी, प्लस नाल की होएगा अदर वर्ड होएगा। समझ ये इसका सिर्फ ओनली स्ट्रक्चर है। इस दे दो स्ट्रक्चर भी बना के रख लो, भावें एक बना के रख लो, होना कुछ नहीं है। सिर्फ तुहाडे समझाउण लई मैंने अलग अलग लिखिया सी कि तुसीं कन्फ्यूज ना होवो। हुण वर्ब की पहली पंजवीं फॉर्म च नहीं उलझना, तुहानूं मैं बहुत क्लीयरली कर चुकी हाँ। अगे देखते हैं जी अगला स्ट्रक्चर। अगर असीं इसनूं नैगेटिव कहना होवे, देखो जिद्दां कि सी आपां गल कीती सी कि मैं फुटबॉल खेडदा हाँ। अगर मैं कहां कि मैं नहीं फुटबॉल खेडदा, कोई मैं नहीं खेडदी, ठीक है मेरी गल है, मैं नहीं खेडदी, उस तो बाद कहता मैं नहीं दुध पींदी, इनू आपां नूं नैगेटिव भी तो बनाउणा पएगा ना। हुण जे आपां कह दईए कि सूरज पश्चिम विचों नहीं निकलदा, आपां कुछ नैगेटिव भी तो कहांगे ना। तो नैगेटिव जदों कहना है तो स्टूडेंट्स उत्थे यूज हुंदा है। नैगेटिव नूं यूज करन दे लई डू एंड डज यूज हुंदा है इहदे स्ट्रक्चर दे विच। डू एंड डज की गल कीती जाए, डू एंड डज, वैसे हुण तुसीं ना समझ लियो कि डू वर्ब की पहली फॉर्म है, डज वर्ब की पंजवीं फॉर्म है। नो नो नो, इत्थे जिहड़ा डू एंड डज लग्गिया ना स्टूडेंट्स, ये हैल्पिंग वर्ब है। इत्थे जदों डू एंड डज की गल जिहड़ी आ रही है, ये यूज हो रहा है एज अ हैल्पिंग वर्ब। इत्थे इहदा मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब तो अगे आना है। हुण डू एंड डज की है, इत्थे हैल्पिंग वर्ब की तरह लगाना। आपां सिंपल प्रेजेंट दे विच जिहड़ा डू डज है वो हैल्पिंग वर्ब की तरह लगता है। क्लीयर होगी गल? समझ लगी इत्थे तक? हुण अगर असीं गल करिए इस दे स्ट्रक्चर दी, स्ट्रक्चर दे विच देखो की है सबजैक्ट दिता होया सानू, डू एंड डज दिता होया, नाल लगेगा सबजैक्ट तो बाद डू एंड डज लगेगा। नॉट आएगा क्योंकि असीं ने नैगेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आएगी, पंजवीं नहीं आएगी, पहली आएगी, प्लस की आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। क्लीयर होगी गल? पंजवीं सिर्फ पहले च आएगी जो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, पंजवीं ना नैगेटिव च ना इंटैरोगेटिव च नहीं आएगी। चलो जी, यू डोंट गो टू स्कूल, तुसी स्कूल नहीं जाते, तुसी स्कूल नहीं जाते। जो इत्थे आपां नूं उन्हां ने कहा कि तुसी स्कूल नहीं जाते, तो देखो यू की सी तुहाडा, यू की गल कीती जाए सबजैक्ट हो गया, डोंट लग गया अपने। इत्थे जिहड़ा डोंट एंड डज है वो अकॉर्डिंग टू उस चीज़ ही लगेगा। डज सिर्फ उन्हां नाल लगेगा जो तीजे बंदे कल्ले बंदे की असीं गल करांगे, तीजे कल्ले बंदे की गल जो असीं करांगे उदों असीं लगावांगे डज। अदरवाइज डू लगाते जावांगे जो तीसरी चीज़ की किसी तीसरे परसन की कह लो, तीसरी कोई चीज़ बारे गल कर रहे, किसी भी तीजे बारे गल करते होवांगे, वो कुछ भी हो सकता है, वो कल्ला होना चाहिए, उहदे नाल असीं डज लगावांगे। अदरवाइज असीं डोंट 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 लगाते जावांगे। एंड उस दे नाल लगनी चाहिए नॉट। देखो डू एंड डज नूं असीं डोंट डजंट भी कह सकते हैं, डू नॉट नूं असीं डोंट कह दिंदे आ, डज नॉट नूं असीं डजंट कह दिंदे आ। ठीक है जी। अगर गल करिए नॉट तो बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो बिल्कुल फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट किया टू स्कूल, तो यदा स्ट्रक्चर की हो गया, यू डोंट गो टू स्कूल।
समझ लगी। पहले का स्ट्रक्चर देख लिया सी, हुण दूसरे के स्ट्रक्चर दे विच डू डज नाल की लग गया, नॉट ऐड हो गया एंड वर्ब की सिर्फ फस्ट फॉर्म रहेगी, B5 किते भी यूज़ नहीं होगी। नैगेटिव एंड इंटैरोगेटिव दे विच ओनली पॉजिटिव दे विच आएगी। ठीक है जी। अगर असी गल करिए अगली एग्जाम्पल दी, आई डोंट ईट एप्पल, मैं सेब नहीं खाती हाँ, मैं सेब नहीं खाती हाँ। आई दा देखो सबजैक्ट हो गया आई, डोंट हो गया साडा हैल्पिंग वर्ब, ईट हो गया साडा वर्ब एंड एप्पल साडा हो गया ऑब्जैक्ट। आए एक पर्सन है पर आए की आ मेन अपना कहिए पहला पर्सन आ, पहले पर्सन नाल तां असी डोंट ही लगावांगे, इसलिए इत्थे डोंट लग गया। शी अगे देखो अगली एग्जाम्पल, शी डज नॉट या कहिए डजंट प्ले हॉकी, शी हो गया सबजैक्ट, डजंट आ गया हैल्पिंग वर्ब, प्ले हो गया साडा वर्ब, हॉकी हो गया साडा ऑब्जैक्ट। अगर असी शी दे नाल डजंट की गल करिए तो शी जिहड़ा हैगा सी ये हैगा जी थर्ड पर्सन, इकल्ला पर्सन एंड डज नॉट इस दे नाल तां लग्या क्योंकि थर्ड इकल्ला बंदा सी। ठीक है जी, इकल्ली कुड़ी की गल हो रही है, हैगी थर्ड पर्सन है पर हैगी इकल्ली आ, इसलिए असी डू की जगह तो इस नाल लगाता डजंट एंड असी प्ले वर्ब की पहली फॉर्म ही इत्थे लगाई है। नैक्सट देखो जी, नैक्सट है साडा अगला रूल जिस दे विच असी गल करांगे इंटैरोगेटिव दी। इंटैरोगेटिव जदों असी क्वेश्चन पुछदे हां लास्ट दे विच क्वेश्चन मार्क भी लगदा ही लगदा हुंदा है। क्वेश्चन जदों असी पुछदे हां डू और डज दी गल आंदी है। सब तो पहला हुण असी जदों नैगेटिव दी गल कीती सी, नैगेटिव वाले दे विच उपर जाइए तो असी हैल्पिंग वर्ब यूज़ कीती है ना, इत्थे हैल्पिंग वर्ब यूज़ कीती है डू डज। ठीक है, जदों हुण सानू पता है कि इहदे विच हैल्पिंग वर्ब यूज़ होण लग गई है तां गाइज असी इसकी हैल्पिंग वर्ब जिहड़ी हैगी आ वो ध्यान विच रखांगे अगले स्ट्रक्चर दे विच भी, मतलब कि इंटैरोगेटिव स्ट्रक्चर दे विच भी। डू एंड डज की गल की जाए तो देखो हैल्पिंग वर्ब अगे आ जाती है, उस तो बाद साडा सबजैक्ट आएगा। देखो हैल्पिंग वर्ब इधर चली गई, नॉट तो कट्टे ही गया, वर्ब की फस्ट फॉर्म, उस तो बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड तो बाद तुसी क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, वो आप सेंटेंस के विच लगाना ही लगाना, स्ट्रक्चर दे विच मैं नहीं लिखिया सी। चलो अगे देखो आप अगर क्वेश्चनस करिए डज ही गो टू स्कूल, हुण आप पहला इनू स्ट्रक्चर नाल मैच करते हैं। डू एंड डज दे विचों एक चीज़ आ गई, ही सबजैक्ट हो गया, गो वर्ब हो गया, टू स्कूल अदर वर्ड हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। डू एंड डज नू आपां उवें लगावांगे, डू सारिਆਂ नाल, डज ओनली उन्हां नाल जिहड़े इकल्ले तीजे परसन ने, इकल्ले तीजे परसन नाल आपां की लगावांगे डज लगावांगे। ठीक है जी, की वो स्कूल जांदा है, डज ही गो टू स्कूल। डज राज स्पीक द ट्रुथ, की राज सच बोलता है, की राज सच बोलता है तो असीं कहांगे डज, राज तीजा परसन है, कल्ला परसन है, इसलिए डज राज स्पीक बोलना हो गया स्पीक द ट्रुथ, सच नू की कह देंगे द ट्रुथ। नैक्सट देखो जी, डू यू स्पीक हिंदी, की तुसी हिंदी बोलते हो, की तुसी हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। तो हुण इत्थे देखो डू आ गया, हैल्पिंग वर्ब अगे, यू क्यों आया क्योंकि यू सैकेंड परसन है, सैकेंड परसन दे नाल असी डू लगाने आ, ओनली थर्ड सिंगुलर परसन दे नाल असी डज लगावांगे। स्पीक मतलब बोलना, हिंदी कोई लैंग्वेज की गल आ गई जां कहिए अदर वर्ड हो गया। तो समझ लगी स्टूडेंट स्ट्रक्चर दी, एक बार रिवाइज कर लिए स्ट्रक्चर शुरू तो। देखो जदों पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है स्ट्रक्चर दे विच की है, पहला सबजैक्ट होएगा, पहला कोई बोल मतलब कि किसी सबजैक्ट रखा जाएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म या फिर पंजवीं फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा। ठीक है जी, अगर आप इसनूं इकट्ठा करके देखिए स्ट्रक्चर नूं तो वर्ब की पहली फॉर्म या फिर पंजवीं फॉर्म नाल अदर वर्ड आएगा। ओके, गल क्लीयर है इत्थे तक। पंजवीं फॉर्म कित्थे आएगी, जदों सिंगुलर कल्ले परसन की गल हो रही होगी, तीजे इकल्ले चीज़ की गल हो रही हो, कल्ले परसन किसी बारे गल हो रही हो, तीजे कल्ले बंदे बारे गल हो रही हो, उत्थे असी वर्ब की पंजवीं फॉर्म जानी कि ESS वाली लगावांगे, अदरवाइज साडी जिहड़ी चली जाती है उही चलेगी। अगे देखो नॉट की जो गल आएगी, जो असी उसनूं नैगेटिव बनाना है, नैगेटिव बनाने वेले असी की कर देना स्टूडेंट्स, उसनूं उसदे नाल असी डज एंड डू एज अ हैल्पिंग वर्ब यूज़ करने ने, एंड डू असी कित्थे यूज़ करना है सारिਆਂ नाल,
बट डज असी कित्थे यूज़ करते हैं, जदों कोई तीजे कल्ले बंदे की गल हो रही है तो असी डज यूज़ करते हैं। उस तो अगे स्टूडेंट्स आ जाते ने साडे इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव जो असी बनाने तो सेम हैल्पिंग वर्ब नूं असी अगे लिख लैने आ, ठीक है जी। एंड जिहड़ा साडा सबजैक्ट है उसनूं असी डू डज तो बाद लिखांगे, फिर साडी वर्ब की फस्ट फॉर्म आएगी, पंजवीं नहीं आनी क्योंकि डू डज हैल्पिंग वर्ब लग चुके हैं, तां पंजवीं की कोई लोड़ है ही नहीं। उस तो बाद साडा अदर वर्ड आ जाता है। नैक्सट देखिए जी, अगे एक एक्सरसाइज है। हाँ जी, एक रूल होर भी आ जाता है, अगर सानू डोंट एंड डजंट सानू मतलब की है कि इन क्वेश्चन भी पूछा जा रहा एंड सेंटेंस नैगेटिव भी है। मतलब की है कि सेंटेंस इंटैरोगेटिव भी है, सेंटेंस नैगेटिव भी है। जो सेंटेंस दोवें होणगे, कि तुसी स्कूल नहीं जाते, कई बार आपां नूं ये भी तो कोई पूछ लैंदा ना कि तुसी स्कूल नहीं जाते, ठीक है, कि तुसी उसनूं नहीं जानते, इदां दीयां गल्लां जदों आउंदियां ने तां नैगेटिव भी हो रहा है, इंटैरोगेटिव भी हो रहा है। तो इहदा स्ट्रक्चर की है कि पहला डू नॉट डजंट लगा दो, भावें ये पहला डू नॉट या डज नॉट लगा दो, या उस तो बाद सबजैक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आनी है, फिर उस तो बाद कोई अदर वर्ड आएगा। हुण अगर असी गल की जाए तो डू प्लस डज लगा के ना सबजैक्ट लगा के भी नॉट लग सकता है, ठीक है, सबजैक्ट लगा के भी नॉट लगाया जा सकता है। पर अगर तुसी डोंट डजंट नूं याद रखोगे तो सानू याद करना सौखा, उन्होंने कित्थे उलझदे फिरांगे आपां पहले सबजैक्ट नॉट है, तां सीधा हिसाब रखो, ये गलत नहीं है, ये भी एक सही तरीका है, ठीक है जी। हुण आपां देखिए इसदियां एग्जाम्पल्स। चलो जी, डोंट यू लाइक एप्पल, तुसी सेब पसंद नहीं करते। देखो डू एंड डज दे विचों डोंट लगाता, यू सी इसलिए डोंट लग गया, एंड सबजैक्ट साडा की हो गया, यू हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म लाइक होगी, अदर वर्ड की हो गया, एप्पल्स हो गया। सेम डज नॉट शी नो यू, डजंट शी नो यू, डजंट शी नू देख के लगाता, उस तो बाद वर्ब की फस्ट फॉर्म, यू कोई अदर वर्ड, पिछे क्वेश्चन मार्क क्योंकि नाल क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि तुसी उसनू नहीं जानते, ठीक है जी। इस तो अगे असी शुरू करते हैं गाइस साडी एक्सरसाइज नहीं आई, फिर भी एक हाँ एक होर छोटा जिहा फंडा रह गया। WH वर्ड्स जिहड़े हैगे आ ना, ये भी मैं ऐड किया सी क्योंकि सिंपल प्रैजेंट दे विच थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, इसलिए साडा जिहड़ा टाइम है वो लग रहा है। इसनूं ध्यान नाल समझना बहुत जरूरी है भी। अगर सानू WH वर्ड्स लगे होण, WH वर्ड्स लगे हुए ने, नाल डू डज लग्या होया है, ठीक है जी, एंड सबजैक्ट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर कोई अदर वर्ड आएगा। मतलब की है इस चीज़ का कि अगर तुहानू कोई तुसी कित्थे रहने हो, कित्थे जाते हो, ऐदां दे सवाल पुछदा है, तुहानू कोई वेयर वैन WH वर्ड्स ला के क्वेश्चन पुछदा है, तो सब तो पहले WH वर्ड्स आएंगे, फिर डू डज आएगा, फिर सबजैक्ट आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, फिर अदर वर्ड आएगा। समझ लगी गाइज? पहला देखो की होना है, WH वर्ड्स ने आना, फिर डू डज ने आना हैल्पिंग वर्ब ने, उस तो बाद की है सबजैक्ट वर्ब। देखो सेम स्ट्रक्चर देखो इत्थे उही है, इंटैरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है सेम, बस अगे WH वर्ड्स आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखिए, वेयर डू यू लिव, देखो सेम स्ट्रक्चर है, वेयर WH यू डू या डज दे विचों डू आ गया, यू सबजैक्ट हो गया, लिव वर्ब हो गया, अदर वर्ड कोई है नहीं, अगर हुंदा तो लग जाता, हुण है नहीं तो आपां लगाया नहीं। अगे देखो वैन डू एंड डज दे विचों डज ही सबजैक्ट कम वर्ब दी फस्ट फॉर्म, वैन डज ही कम, वो कदों आवेगा, ठीक है जी। तुसी कित्थे रहंदे हो, इन्हां क्वेश्चन दे अगे भी असी की लगाने WH वर्ड्स लग जाते हैं, एंड इन्हां नाल भी साडा सिंपल प्रैजेंट इदां बनदा है। ये स्ट्रक्चर भी तुहानूं समझ आ गया। देखो स्ट्रक्चर बहुत ईजी ने, जे तुहाडे मन दे विच एक बार स्ट्रक्चर बैठ गए, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार स्ट्रक्चर बैठ गए तो तुसीं ये मनो कि टेंस तुहाडे लई ईजी ने। अगे देखिए जी, अगे हुण साडी आ गई है जी एक्सरसाइज दे विच हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है। देखो ये विच आपां सिंपल प्रैजेंट नहीं फिल करना है, सिंपल प्रैजेंट कीता है, सिंपल प्रैजेंट नहीं आपां फिल करांगे। सब तो पहले देखो आई डैश चेस, तो आपां फिल की करना है,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ प्ले। आई डैश चैस प्ले। तो गल जो प्ले की आ रही है गाइस, गल प्ले की आ रही है, आप प्ले मतलब कि देखो हुण सबजैक्ट सानू देता, ठीक है, आप वर्ब फिल करनी है, अदर वर्ड साडे कोले हैगा, ठीक है जी, चैस। हुण सबजैक्ट देख के आप की फिल करनी है, वर्ब की फॉर्म फिल करनी है कि पहली आएगी, B1 आएगी या फिर B5 आएगी, यही चीज़ देख के फिल करनी है आप। हुण आप सबजैक्ट देखिए आए है मतलब कि पहला परसन है, पहले परसन के नाल तां V1 लगती है, तो प्ले तो ऑलरेडी V1 है, तो आप इत्थे की फिल कर देंगे, प्ले फिल कर देंगे। बिल्कुल राइट है जी, प्ले फिल होगी। अगे देखो दे डैश लैटर, दे डैश लैटर फिल की करना आप राइट, क्योंकि राइट की है वर्ब की फॉर्म है, दे डैश लैटर राइट आप वर्ब की फॉर्म है। तो हुण आप ये देखांगे कि V1 लगा के V1 ही होगी या फिर B5 बना के इसनूं फिल किया जाए। इसनूं आप देखांगे सबजैक्ट तो, सबजैक्ट साडा दे है, दे केड़ा परसन है, थर्ड परसन है, तीजा बंदा है, वैरी गुड। हुण तां फिर दे आ गया तो इसदा मतलब अपनी B5 आएगी, नहीं क्यों नहीं आएगी, क्योंकि दे मतलब ज़्यादा, दे मतलब ओह पर ज़्यादा परसन दे जो गल होगी उदों तो असीं डज लगाउणा ही नहीं, उदों तो असीं वर्ब की पंजवीं फॉर्म लगाउणी नहीं, एस या ES लगाउणा ही नहीं नाल, उदों तो असीं सिंपल वर्ब की पहली फॉर्म रखनी है। तो इट मीनस ओनली की आएगा, राइट वर्ब की फस्ट फॉर्म आएगी। क्लीयर स्टूडेंट्स। अगे देखो ही डैश अ सॉन्ग, ही डैश अ सॉन्ग सिंग की गल आ रही है, सिंग किसनू देख के लगाया जाएगा, ही नू देख के लगाया जाएगा कि वर्ब की फस्ट फॉर्म आएगी कि फिफ्थ आएगी। हुण अगर देखिए तीजा बंदा ही पहला परसन, तीजा परसन है, इकल्ला परसन है, तो इसनू सिंग नू असीं वर्ब की पंजवीं फॉर्म की बना लांगे, सिंग्स बना लांगे। तो इत्थे आपां की फिल कर देंगे, सिंग्स फिल कर देंगे। क्लीयर स्टूडेंट्स। अगे देखो रीमा डैश टू स्कूल, रीमा डैश टू स्कूल, रीमा एक थर्ड परसन है, रीमा थर्ड कल्ला परसन है, तो गो का की बन जाना है, गोज बन जाना है, एंड इत्थे असीं फिल कर देंगे रीमा गोज टू स्कूल। नैक्सट देखो इट डैश टूडे, इट डैश टूडे, इट कोई की है, थर्ड परसन की गल हो रही है, किसी चीज़ की गल हो रही है, इट मीनस थर्ड परसन है, किसी बारे गल यह कह के किसी नू किसी बारे गल की जा रही है, किसी कल्ले बारे की जा रही है, इट क्योंकि कल्ला ही हुंदा, ठीक है जी। तो रेंज दी आपां पंजवीं फॉर्म की बना लांगे, रेंज, क्योंकि आपां नूं पता है कि तीजे कल्ले नाल B5 लगूगी, रेंज बन गई, तो आपां इत्थे फिल कर देंगे जी रेंज। समझ आई स्टूडेंट्स। इसनूं आपां इदां फिल करांगे। एंड अगे अगर एक आपां होर इस दे नाल करिए, अगर आपां मान लो इत्थे पहले विच भरिया सी प्ले, V1 भर ली, हुण अगर असीं इसनूं नैगेटिव बनाना तो असीं किवें बनावांगे, आए प्ले दे नाल देखो अगर आप इसनूं नैगेटिव बनाना, नैगेटिव बनाने वेले सानू रूल याद है कि सानू डू या डज चो कोई नाल लगाना पेगा, नाल नॉट लगेगा। आए दे नाल सानू पता है कि डोंट लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा, ठीक है जी। प्ले कली वर्ब की फस्ट फॉर्म रहेगी, प्ले अगे किया चैस, आई डोंट प्ले चैस, इसका की बन गया आई डोंट प्ले चैस। अगला देखो दे दा आ गया सी इत्थे स्टूडेंट्स राइट, दे ओह पत्र लिखते हैं, अगर असीं इसनूं नैगेटिव बनाना होवे तो असीं कहांगे ओह पत्र नहीं लिखते हैं, दे डोंट राइट लैटर, दे डोंट राइट लैटर लिखते हैं आएगा। तो हुण देखो क्योंकि वो पत्र नहीं लिखते हैं तो आपां इहनूं की बना लिया, दे डोंट राइट लैटर, क्योंकि दे नाल देखो ज़्यादा ने तो आप डू नॉट या डोंट लगवाने आ, ठीक है जी। राइट का अपना राइट रह जाऊगा, लैटर का अपना लैटर रह जाना। अगे अगर असीं गल करिए अगले दी, ही सिंग्स, इत्थे थोड़ा ध्यान देना, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इत्थे आपां सिंग्स भरता, चलो तुहानूं पता है कि इत्थे सिंग्स आ गया। हुण देखो ओह गाउंदा है, इसनूं आपां अगर आपां नैगेटिव बनाउणा, ओह नहीं गाउंदा है, ओह गाउंदा नहीं है, तो हुण आपां की करांगे, ही दा ही लिखांगे, डू या डज दे विचों की लिखांगे, डू या डज दे विचों आपां लिखांगे डज, क्योंकि ही थर्ड परसन इकल्ला परसन है, तो आपां इत्थे डज लिख दांगे, डज दे नाल नॉट या इसनूं डजंट लिख दांगे। हुण उस तो बाद सिंग्स सी जिहड़ा इत्थे साडा सिंग्स सी B5 सी, उसनूं असीं V1 च कन्वर्ट कर लेना, क्यों, क्योंकि सानूं पता है कि इत्थे V5 हुण नहीं आएगी क्योंकि डज लग चुकिया, तो असीं इत्थे ओनली सिंग लिख के अ सॉन्ग लिख दांगे।
ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गई है गल स्टूडेंट्स। अगली एग्जाम्पल देखिए, रीमा डैश टू स्कूल। रीमा डैश टू स्कूल तो इत्थे की भरिया सी गोज टू स्कूल। क्यों गोज भरिया सी? क्योंकि रीमा थर्ड परसन सी, इकली परसन सी। ठीक है जी, गोज टू स्कूल कर दिता है। हुण असी गल करिए कि रीमा स्कूल नहीं जाती है। रीमा स्कूल नहीं जाती, तो रीमा दे नाल डू एंड डज दे विचों एक लगावांगे। सानू स्ट्रक्चर पता है कि पहला डू या डजन नॉट आएगा, तो डू और डज दे विचों डज नॉट लगाता या डजंट लगाता, रीमा स्कूल नहीं जाती है। तो गोज का असी बना देंगे B5 तो V1 गो, अगे की लिख देंगे टू स्कूल। रीमा स्कूल नहीं जाती है। नैक्सट देखो जी, नैक्सट आ गया अगे साडा इट डैश टूडे। इट डैश टूडे, इट रेन्स टूडे। इट रेन्स टूडे क्यों भरिया सी आपां? क्योंकि आपां थर्ड किसी कली चीज़ बारे गल कर रहे सी, इसलिए असीं इत्थे रेन्स करता सी। बट हुण अगर असीं रेन्स की थां ते की करना है, हुण असीं कह रहे सी कि अज कह लिए कि बारिश हो रही है, ये बरखा अज बारिश हो रही है। पर अगर असी अज गल करिए कि अज बरखा नहीं हो रही है, अज बारिश नहीं हो रही, नहीं हुंदी। ठीक है, अज बारिश हुंदी है, अज बारिश होई, कुछ भी गल हुंदी है, उन्होंने कहा भी अज बारिश हुंदी है, तो आप कहांगे अज बारिश नहीं हुंदी है। तो अगर असी नहीं हुंदी है दी गल करते हैं, तो हुण इत्थे आपां की कहांगे? हुण आपां इत्थे इसनूं नॉट च बदलना है। देखो इट दे नाल सानू पता है कि इट थर्ड परसन है, कल्ला जिस दे बारे गल हो रही है, तो डजंट ला देंगे। डजंट लग गया जी। ठीक है जी, रेन्स तो असी B5 तो B1 बनाने लई रेन बना देंगे। एंड असी टूडे देखो की कर देना है, अगर नाल असी की लगा देंगे, टूडे लगा देंगे। क्लीयर हो गई है गल? बिल्कुल गल क्लीयर है। नैक्सट देखो, अगर आपां इसनूं सेम क्वेश्चन मार्क बनाना, इंटैरोगेटिव बनाना। देखो स्टूडेंट्स इसनूं ध्यान नाल करना है, क्योंकि सिर्फ अगर तुहाडे यही स्ट्रक्चर एक बार तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई ना, अज दा वाला लैक्चर तुहानूं समझ आ गया, तो इट मीनस टेंस तुहाडे लई कुछ नहीं हैगे। टेंस तुहाडी टिप्स ते ने, टेंस तुहाडी टिप्स ते हो जाने ने अगर तुसीं अज वाले टॉपिक नूं ध्यान नाल समझ लिया। हुण अगर इसनूं असीं बनाना है इंटैरोगेटिव, इसनूं इंटैरोगेटिव बनाना, देखो आपां नूं पता है कि आई प्ले चैस कहना है, दे राइट लैटर कहना। ठीक है जी, ही सिंग्स ए सॉन्ग कहना, रीमा गोज टू, ठीक है जी कह लिया, इट रेन्स टूडे कह लिया। हुण आपां इसनूं कहना कि मैं चैस खेडदा हाँ, कि मैं चैस खेडदा हाँ, तो देखो पहला डू एंड डज बाहर आएगा। डू, क्योंकि जिहड़ी आए आ वो फस्ट परसन है, फस्ट परसन दे नाल तां आपां डू लगाने आ। चलो जी, आए प्ले दा प्ले, अगे की लिख देंगे चैस, पिछे की लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कि मैं चैस खेडदा हाँ, डू आई प्ले चैस। नैक्सट देखो, दे डैश लैटर, राइट लैटर सी ना इत्थे, हुण आपां उन्होंने लिखिया वो पत्थर लिखते हैं। अगर आप इसनूं बनाउणा पत्थर नहीं लिखते हैं, वो पत्थर नहीं लिखते हैं, तो आपां की लिखांगे? डू दे V1 की या राइट लैटर, की वो पत्थर लिखते हैं, पिछे की लगा देंगे आपां क्वेश्चन मार्क। तो समझ लगी गल? डू दे राइट लैटर। हुण तुसीं मेरे नाल बनाउणा ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग तो आपां बनाउणा कि वह गाना गाउंदा है। डज, क्योंकि ही लग्या तो आपां की लगा देंगे? डज ही। सिंग्स नहीं लिखावांगे आपां, हुण आपां B1 लगाउणी है, सिंग अ सॉन्ग, कि वह पत्तर लिखदा है, पिछे की लगा देंगे, सॉरी गाना गाउंदा है, गीत गाउंदा है, पिछे लगा देंगे आपां क्वेश्चन मार्क। नैक्सट देखो, रीमा डैश टू स्कूल, रीमा गोज, आपां इत्थे बनाया सी रीमा गोज। अगर आपां इसनूं बनाउणा है रीमा स्कूल, की रीमा स्कूल जांदी है, की रीमा स्कूल जांदी है, तो आपां की करांगे? डज रीमा गो टू स्कूल। गो टू स्कूल क्यों लगाया? क्योंकि सानू पता है कि डू और डज हैल्पिंग वर्ब ने, उन्होंने विच SES ऑलरेडी आ गया। ठीक है जी, तो V5 की लोड़ नहीं है, हैल्पिंग वर्ब लग चुकिया, B5 की लोड़ नहीं है, तो आप इसनूं B1 ही रखना है। अगे देखो, इट की अज बरखा हुंदी है, डू डज इट आएगा, क्योंकि फस्ट परसन सिंगुलर परसन है। ठीक है जी, थर्ड परसन की गल हो रही है, सिंगुलर परसन की गल हो रही है, सॉरी थर्ड परसन सिंगुलर परसन की गल हो रही है। डज इट रेन
टूडे, टूडे ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ क्वेश्चन मार्क लगा ਦਾਂਗੇ। समझ लगी जी। स्टूडेंट्स ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ कि बेटर है कि अगर तुहानू समझ आ गया अज के टॉपिक ते अगर तुसी कॉन्सनट्रेशन कर लोगे इसनू ध्यान नाल कर लोगे तो इट विल बी बेस्ट। इस तो बाद तुहाडे जिहड़े टेंस ने तुहानू बहुत ईजी लगन लग जाणगे।